تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد۔ آپ کو طارق بن زیاد کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے اور طارق بن زیاد کی اندلس کی تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے۔ خاص طور پر مسجد قرطبہ اور سقوط غرناطہ کے اہم واقعات کی تفصیل ویڈیو میں شامل کی جائے گی۔ ان واقعات کو اسلامی تاریخ، خاص طور پر اندلس کی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے قدموں کے انمٹ نشان جبل طارق کی پہاڑیوں پر موجود ہیں۔ اسلام کے نظیم سپہ سالاروں کے نام ان کی زندگی میں بھی مٹانے کی کوشش کی گئی، ان کی موت کے بعد بھی اور پھر تاریخ کے قبرستان میں دفن ہونے کے بعد بھی یہ کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی اس کا نام مٹا نہیں سکتی، اور طارق بن زیاد اس سچائی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا، ثبوت ہے اور ثبوت رہے گا۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ طارق بن زیاد کون تھا، قرطبہ کا قاضی، غرناطہ کے آخری مسلمان حکمران ابو عبداللہ محمد اور مسجد قرطبہ کی داستانیں بھی ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، اس لیے بعض لوگ ان ناموں سے واقف ضرور ہیں، لیکن ان واقعات اور ان کرداروں کے بارے میں مکمل حقائق کیا ہیں ان سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور یہی حقائق اور واقعات آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے جو طارق بن زیاد، مسجد قرطبہ اور غرناطہ سے جڑے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اندلس ہی وہ سرزمین ہے جہاں طارق بن زیاد نے عصر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی، اپنے جہازوں یعنی کشتیوں کو آگ لگائی اور پھر اپنے مٹھی بھر لشکر سے یوں مخاطب ہوا، آپ کے آگے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم نے لڑ کر جیت کر زندہ رہنا ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کر جان دینی۔ جوانوں نے یک آواز ہو کر جواب دیا، ہم جئیں یا مریں، ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے۔ اور پھر یورپ میں پہلی مسلمان ریاست نے جبل طارق میں آنکھ کھولی۔ ناظرین، آئیے آپ کو مختصر طور پر طارق بن زیاد کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بنو امیہ کا دور تھا اور ولید بن مالک مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ دمشق اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کا والی تھا۔ ابراہیم بن یوسف موسیٰ کا خادم تھا۔ ابراہیم نے زندگی کے ہر اس موڑ پر اپنے آقا کا ساتھ دیا جہاں سارے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ابراہیم نے 2 بار موسیٰ کی جان بھی بچائی۔ موسیٰ نے اس وفاداری کے بدلے ابراہیم کو اپنا منہ بولا بھائی اور نائب قرار دے دیا۔ ابراہیم ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ ابراہیم کی بیوہ نے اپنے ننھے بیٹے طارق کا ہاتھ پکڑا اور موسیٰ کے محل پہنچ گئی۔ موسیٰ نے طارق کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، یوں طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پیدائشی جرنیل تھا، سپاہ گری اس کے خون میں شامل تھی۔ وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتا تھا جس طرح پرندے ہواؤں سے کھیلتے ہیں۔ وہ بلا کا ذہین بھی تھا، ایمان اور شجاعت بھی اس پر فدا تھی۔ وہ جوان ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے اسے طنجہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے۔ سمندر کے پانی اسپین اور طنجہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن سماجی مسافت بہت طویل ہے۔ مراکش افریقہ میں ہے اور اسپین یورپ میں۔ البتہ طارق بن زیاد نے شہر طنجہ کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاتے ہیں جو طارق بن زیاد کے اسپین پر حملے کی وجہ بنی۔ کہتے اسپین میں اس وقت روڈرک کی حکومت تھی۔ یہ گاتھ قوم کا بادشاہ تھا، ظالم بھی تھا، لالچی بھی اور بے راہرو بھی تھا۔ اس دور میں مختلف علاقوں کے والی اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بھجوایا کرتے تھے۔ کاؤنٹ جولین شاہ روڈرک کا ایک والی تھا، اس کی بیٹی فلورینڈا دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھٹک گیا، اس نے اسے محل میں بلایا اور بے آبرو کر دیا۔ بیٹی نے باپ کو اطلاع دے دی۔ باپ بیٹی کو لینے محل پہنچ گیا، شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بیٹی پر گزری قیامت سے واقف ہے۔ اس نے چھٹیاں گزارنے کے بہانے بیٹی کو ساتھ لیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ وہ جب آخری ملاقات کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، جولین تم اس بار ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے۔ جولین نے ادب سے جھک کر عرض کیا، حضور میں اگلی بار آپ کو ایسا تحفہ دوں گا لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے۔ جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے اسپین پر حملے کی ترغیب دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ بن نصیر یورپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جولین کی ترغیبات بھی تگڑی تھیں اور اس کی کہانی بھی افسوسناک۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے 2 جرنیلوں طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو 7,000 جوانوں کے 2 لشکر بنا کر دیے اور انہیں جولین کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا۔ یہ دونوں جرنیل صرف ریکی کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اسپین کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی
शौक जहाद के ऐसे जुनून में मुब्तला हुए कि उस वक्त तक वापस नहीं लौटे जब तक स्पेन के तमाम बड़े शहर उनके कदमों में नहीं आ गए। तारिफ बिन मालिक स्पेन के जिस साहिल पर उतरा वहाँ उसके नाम से एक शहर आबाद हुआ। ये शहर आज भी तरीफा के नाम से मौजूद है। ये एक जदीद शहर है, लोग इसे तरीफा पुकारते और तरीफा लिखते हैं। लेकिन ये शहर किसने आबाद किया, कैसे आबाद किया और क्यों आबाद किया, ज़्यादातर लोग इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं। दूसरी जानिब तारिक बिन ज़ियाद 5 अप्रैल 710 को जबल तारिक मौजूदा जब्राल्टर में उतरा और कश्तियों को आग लगाई। उसके पास कुल 7,000 जवान थे। अक्सरियत उसके अपने कबीले बर्बर से ताल्लुक़ रखती थी। राडर्क 40,000 फौज लेकर आया, मुकाबला हुआ, राडर्क को शिकस्त हुई और वो मैदान से फरार हो गया। तारिक बिन ज़ियाद जबल तारिक का कब्जा लेने के बाद स्पेन में उतर गया। 19 जुलाई 711 को वादी लकाह में बड़ा मार्का हुआ। राडर्क ये जंग भी हार गया। यूं उंदलस पर अमलन मुसलमानों का कब्जा हो गया। इस्लामी लश्कर ने उसके बाद तलेताह पर भी कब्जा कर लिया। ये शहर आज भी कायम है और टलेडो कहलाता है। तारिक बिन ज़ियाद की फतुहात की खबरें जब अफ्रीका पहुंची तो मूसा बिन नसीर के दिल में तारिक के लिए रश्क और हसद का जज्बा पैदा हुआ। उसने तारिक को मजीद फतुहात से रोक दिया, अपनी सल्तनत अपने बेटे अब्दुल्ला बिन मूसा के हवाले की और 18,000 जवान लेकर खुद भी स्पेन पहुंच गया। तारीखी रिवायत बता दें कि जिस मकाम से उंदलस पहुंचा वो बादजा जबल मूसा कहलाया, लेकिन ये जबल तारिक की तरह मशहूर न हो सका। मूसा इस्लामी लश्कर को करतबा तक ले गया। नाज़रीन, तारीख बताती है कि खलीफा बिन वलीद बिन मालिक एक सेल्फ सेंटर्ड बादशाह था। वो अपने अलावा किसी को कामयाब और कामरान नहीं देख सकता था। लिहाजा उसने तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर की फतवाहत की खबरें सुनी तो उसने दोनों को दमिश्क तलब कर लिया। मूसा ने करतबा का चार्ज अपने बेटे अब्दुल्ला के हवाले किया और तारिक को लेकर दमिश्क पहुंच गया। बादशाह ने दोनों को माजूल किया और उनका एहतसाब शुरू कर दिया। नाज़रीन, यूं यहाँ से इस्लामी तारीख के दो अजीम जर्नैलों का जवाल शुरू हो गया और ये दोनों गुमनामी के अंधेरों में उतर गए। नाज़रीन, याद रहे कि उंदलस की बुनियाद मुसलमानों ने 710 में रखी थी, जिसमें मुसलमानों ने करतबा, गरनाता, एशबिलिया और तलेहता जैसे शहर आबाद किए और जहाँ से मुसलमानों ने आधा फ्रांस फतह कर लिया था। कुछ समुद्र के पानियों में खुश्की का एक टुकड़ा डोलता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, ये टुकड़ा वो ज़मीन है जिसे अरबों ने तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब किया और उसे जबल तारिक का नाम दिया गया। याद रहे कि यूरोप में मुसलमानों की सल्तनत 700 साल का सफ़र तय करके ख़त्म हुई जब उंदलस का आखिरी मुसलमान भी वहाँ से रुखसत हो गया और जबल तारिक पर भी ईसाई झंडा लहरा दिया गया तो हस्पानिया के लोगों ने जबल तारिक को जब्राल्टर बना दिया। नाज़रीन, नाम तो बदल गया लेकिन तारीख आज भी उसे जबल तारिक ही कहती है और ये आखिरी सांस तक यही कहती रहेगी, क्योंकि ये एजाज़ अल्लाह ने इस बर्बर ज़ादे को बख्शा था। और याद रखें, कुदरत के बख्शे एजाज़ों को कोई एक्सपायरी डेट नहीं हुआ करती। तारीखी रिवायत के मुताबिक तारिक बिन ज़ियाद 720 में फौत हुआ। उस वक्त उसकी उम्र महज 39 साल थी। वो कैसे मरा, उसके जनाजे में कितने लोग थे और वो कहाँ दफन हुआ, तारीख के पास कोई जवाब नहीं। ताम तारीख इतना जानती है कि मुसलमानों को आज तक जितना नुकसान खुद मुसलमानों ने पहुंचाया, इक़्तिदार और नामूस की हवस ने पहुंचाया और गद्दारों ने पहुंचाया, इतना नुकसान कोई दूसरा नहीं पहुंचा सका। और तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर इस हकीकत की बहुत बड़ी मिसाल है। नाज़रीन, यूं तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर तारीख के गुमनाम सहराओं में गुम हो गए, लेकिन स्पेन आज भी जिंदा है। ज़िंदगी जबल तारिक में भी जिंदा है और जब तक जबल तारिक मौजूदा जब्राल्टर और स्पेन दोनों मौजूद हैं, दुनिया का कोई शख्स तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर से उसका नाम और कारनामा नहीं छीन सकता। तारीख बताते हैं कि तारिक और मूसा के जवाल के बाद उंदलस की सल्तनत को झटका लगा, फतुहात का सिलसिला रुक गया। मूसा बिन नसीर का बेटा अब्दुल्ला बिन नसीर करतबा में कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये अफरा तफरी आर्जी थी, क्योंकि 788 में उम्वी शहजादे अब्दुल्ला अव्वल ने करतबा में पहली इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। मुसलमान आगे बढ़े और इस्लामी सल्तनत शुमाली स्पेन के इलाके एस्टोरियाज और फ्रांस के वस्त तोरस तक फैल गई। नाज़रीन, ये इस्लामी सल्तनत 1460 तक कायम रही। इस दौरान यूरोप के ईसाई इकट्ठे हुए। 1072 में उंदलस पर हमले शुरू हुए। 1212 में ईसाइयों ने तोलूसा फतह कर लिया। 1236 में करतबा से इस्लामी परचम उतर गया। 1250 में टोलेदो और एशबिलिया भी चला गया और जनवरी 1492 में गरनाता की चाबियां भी फर्डिनेंड और एजाबिला को मिल गई। उंदलस के 30 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया या फिर ईसाई बना लिया गया, जो कि तारिक बिन ज़ियाद के बाद की तारीखी हकाइक हैं।
नाज़रीन, आपने जबल तारिक और स्पेन यानी उंदलस की फतह का तज़किरा मुलाहिज़ा किया, जिसे दुनिया आज जैब्राल्टर कहती है, जहाँ आज से 1300 साल कबल एक बर्बर ज़ादे ने कदम रखा, अजान दी और ज़मीन को मुसलमान बना लिया था। नाज़रीन, यही उंदलस जो 1300 साल कबल तारिक बिन ज़ियाद ने फतह किया था, इसी उंदलस की तारीख जो तारिक बिन ज़ियाद के दौर के 5 सदियों बाद की है, बड़ी ही दिलसोज है। क्योंकि जिस रियासत को तारिक बिन ज़ियाद ने कायम किया था, उसी रियासत उंदलस के साथ मुसलमानों की गद्दारी ने वो हाल किया जिसके बारे में सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है। तारीख के मुताबिक इस रियासत को 5 सदियों में मुसलमानों ने उरूज की बुलंदियों तक भी पहुंचाया, जिसकी एक मिसाल करतबा की जामे मस्जिद भी है। लेकिन नाजरीन, उन्हीं मुसलमानों ने अपने हाथों इस रियासत को खो दिया, इस रियासत को बर्बाद किया। आपको बताते चले कि रियासत उंदलस की तबाही में 2 शहरों का तस्करा बहुत अहम है, जिनमें एक शहर करतबा है, दूसरा शहर गरनाता है। हम सकूत गरनाता का तस्करा भी करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं शहर करतबा और इस्लामी दौर के मारूफ मस्जिद जामे मस्जिद करतबा का। याद रहे कि मौजूदा ज़माने में करतबा जो स्पेन का एक शहर है, जो स्पेन के कैपिटल मैड्रिड से तकरीबन 394 किलोमीटर और जबल तारिक से 130 किलोमीटर के फासले पर दरियाए करतबा के किनारे वाक़ है। स्पेन अपने महल वकू के एतबार से यूरोप का आखिरी और सबसे खूबसूरत मुल्क है। इसके चारों तरफ समुद्र है, सिर्फ शुमाल की जानिब खुश्की का हिस्सा फ्रांस से मिलता है। याद रहे कि स्पेन का कदीम नाम उंदलस है, नेज़ उंदलस का एक नाम इस्पानिया भी है। अहले रोम उंदलस को इस्पानिया और अहले अरब उंदलस कहा करते थे, इसलिए तमाम अरबी तारीखों में उंदलस ही मुस्तैमल है और अहले उर्दू उसे उंदलस, हस्पानिया और स्पेन तीनों नामों से याद करते हैं। इन तारीखी रिवाज से मालूम होता है कि उंदलस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक पोते या परपोते का नाम था। उसी ने ये मुल्क आबाद किया था, लिहाजा ये मुल्क उसी के नाम से मौसूम हो गया। कहा जाता है कि उंदलस की इस्लामी तारीख बनु उमैया के दौर से शुरू होती है। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मल्क के ज़माने में अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के हुक्म पर तारिक इब्न ज़ियाद ने सन 92 हिजरी मुताबिक सन 711 में ईसाइयों से पूरी इस्लामी आबोताब के साथ उंदलस फतह किया, जिसकी एक दिलचस्प और इबरत खेज तारीख है। तारीखी रिवायत बता दें कि सल्तनत बनु उमैया में उंदलस सल्तनत का एक सूबा हुआ करता था। फिर जब खिलाफत बनु उमैया से बनु अब्बासिया के हाथ आई और बनु उमैया चुन चुन कर मारे जाने लगे, तो इस बीच बनु उमैया का एक काबिल और जहाँसाज शहजादा अब्दुर्रहमान अल दाखिल भाग कर उंदलस आया और उंदलस के अंदरूनी फितनों, बगावतों और लाकानूनियत को ख़त्म करके 138 हिजरी में एक आज़ाद हुकूमत कायम की और शहर करतबा को दारुल सल्तनत करार दिया। तारीख में सल्तनत को सल्तनत उंदलस के नाम से जाना जाता है। नंद शहर करतबा की जब भी बात की जाती है, तो इस शहर की तारीख में जो सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, वो जामे मस्जिद करतबा की तामीर को हासिल है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जामे मस्जिद करतबा की बुनियाद अब्दुर्रहमान अल दाखिल ने सन 159 हिजरी मुताबिक 786 में डाली थी। याद रहे कि अब्दुर्रहमान उंदलस का पहला हाकिम था जिसने अब्बासी सल्तनत से अलग उंदलस में एक नई इस्लामी हुकूमत कायम की, जिसकी तारिक बिन ज़ियाद की फतह से पड़ी थी। तारीखी रिवायत के मुताबिक अब्दुर्रहमान अल दाखिल ने मस्जिद की तामीर में 80,000 दिनार खर्च किए, मगर कबल इसके कि तामीर पाया तकमील को पहुंचती, अब्दुर्रहमान अल दाखिल की मौत का वक्त आ पहुंचा। उसके बाद उसके साहबजादे हशाम ने सन 166 हिजरी मुताबिक सन 793 में तामील मुकम्मल कराई। अल्लामा मकरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि फ़तह उंदलस के वक्त दरिया करतबा के किनारे गिरजा घर था। मुसालियत के मुताबिक आधे गिरजा पर मुसलमानों का तसल्लुत था, मगर जब अब्दुर्रहमान अल दाखिल ने जामे मस्जिद तामीर करानी चाहिए तो ईसाइयों से 1 लाख दिरहम में गिरजा की ज़मीन खरीद ली। इसके अलावा और भी इर्द गिर्द की ज़मीनें गिरा कदर कीमतों में खरीदी गई थीं। शाहान उंदलस यके बाद दीगरे अपने अपने हैत में जामे मस्जिद करतबा की तामीर और तोसी में दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते रहे। नाज़रीन, अल्लामा मकरी का बयान है कि उंदलस के तीसरे बादशाह यानी हुक्म अव्वल के दौर में जामे मस्जिद करतबा आलम इस्लाम की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत निसनत फनकारी और कारीगरी का एक अजीम शाहकार बन गई थी। मस्जिद करतबा अहद इस्लामी की हसीन यादगार और सतूत इस्लामी का दिलफरेब नमूना थी। बड़े बड़े मौरखीन और सयाहीन इसकी तारीफ में रतबुल लिसान रहे। जामे मस्जिद करतबा जहाँ शायर इस्लाम की हैबत व अजमत का सबब थी, वहीं मुसलमानों की फनकाराना शान की मुँह बोलती तस्वीर भी थी। मुसलमानों ने ऐसे ज़माने में मस्जिद करतबा के ज़रिए फ़न तामीर की एक ऐसी अनोखी मिसाल पेश की कि जब दुनिया मगरिब मशरिक इसे फ़नून जदीदा से वाकिफ़ भी ना थी। ये महज इस्लामी जज्बात से मुतासिर हकीकत से ना आशना दावा नहीं, बल्कि एक अमर वाक़े का इजहार है। करूण वस्ता की तारीख़ दुनिया यूरोप में किसी ऐसी इमारत की मिसाल पेश करने से कासिर है।
यही वजह है कि अल्लामा इकबाल मरहूम ने इसे अपनी नज़म में काबाए अरबाब फ़न करार दिया। जैसे कि मस्जिद करतबा पर लिखी नज़म में अल्लामा फरमाते हैं, काबाए अरबाब फ़न सतवत दीन मुबीन, तुझसे हरम मर्तबत उंदलसियों की ज़मीन। इस तरह एक अंग्रेज सयाह लिखता है, ये इंसानी आंख के सामने से गुजरने वाले तमाम मनाजिर में से सबसे ज्यादा दिलकश मंजर है और इसकी महारत और अजमत कदीम या जदीद इमारत में कहीं नहीं मिलती। इसकी बर्बादी कैसे हुई जो कि मस्जिद करतबा से महरूमी का सबब बनी। नाज़रीन, कुदरत का ये देरीना दस्तूर है कि जब कोई कौम खुदा की नेमतों की नाकदरी करती है तो फितरत की जब्बारी जोश में आ जाती और देखते देखते शाहों को गुलाम और शहनशाहों को गदा बनाकर बेनामो निशान कर देती है। नाज़रीन, कुछ ऐसा ही मुसलमानान उंदलस के साथ भी हुआ। चुनाचे हुक्मरान उंदलस की रियासती खाना जंगियों, खुद गर्जियों और गद्दारियों ने मुसलमानों को जवाल की राह पे डाल दिया। हत्ता के 1232 में उंदलस का मरकज़ शहर करतबा मुसलमानों के हाथ से छीन लिया गया। फिर सदियों से ताक में बैठे मुसलमानों के खून के प्यासे भूखे नंगे नसरानियों ने मस्जिद करतबा के साथ दुश्मनी और अदावत का वो बदतरीन कारनामा अंजाम दिया कि जिसे सुनकर इंसानियत कांप जाती है और तहजीब कान बंद कर लेती है, शराफत दांतों तले उंगलियां दबा लेती है। नसरानियों ने मस्जिद करतबा की मुकद्दस ज़मीन को गिरजाघर बना लिया। मिंबर और महराम में इब्ने मरियम की तस्वीर और मूर्तियां बेजा कर दी। दरो दीवार को नसरानी नक्शो निगार से पाट डाला। बस असल महराब की जगह यादगार के लिए अपनी हालत पर बाकी छोड़ दी ताकि आने वाली नस्लें मुसलमाना ने उंदलस की बर्बादी का खुली आंखों मुशाहदा कर सकें। याद रहे कि सकूत करतबा और बवा शबीलिया के बाद उंदलस में मुसलमानों की आखिरी रियासत गरनाता 1232 तक 1492 तक रह गई, जहाँ बनु अहमर मुसलमानों की रही सही इज्जत की हिफाजत करते रहे, मगर कौम के गद्दारों को ये बची हुई इज्जत भी रास ना। आखिरकार 1492 में बनु अहमर का नाअहल और सियासी चालबाजियों से नाबल्द बादशाह अबू अब्दुल्ला ने अपने गद्दार वज़रा की शह पर गरनाता की चाबी भी फर्दिनंद और मलका एजाबेला को दे दी। उंदलस के 30 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया, जिंदा जलाया गया या फिर तलवार के जोर पर ईसाई बना लिया गया। मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें मसमार कर दी गई, खजाने लूट लिए गए, कुतुब खाने जला दिए गए और गरनाता के उफक पर मुसलमानों के अरूज का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गरूब हो गया। आपको बताते चले कि उंदलस मुसलमानों के दौरे अरूज में दौलत और सरबत की फरावानी, शहरी तरक्यात और उलूम व फ़नून के एतबार से यूरोप का पहला मुल्क था। अजीम साइंसदान अबुल कासिम ज़हरावी सर्जरी का मौजूद, अजीम फ़लसफ़ी और हकीम इब्न रुश्द और इमाम तफसीर हज़रत इमाम करतबी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे सैकड़ों उलमा उंदलस की ज़मीन से जलवाए वजूद में आए। अहले दुनिया के दिलों पर मुसलमाना ने उंदलस की क्या अजमत थी, इसका अंदाज़ा शेख इब्ने बतूता के कौल से बखूबी लगाया जा सकता है। शेख अपने बतूता, जो हमारी तारीख के सबसे बड़े सयाह हैं, अपने सफ़रनामा में लिखते हैं, सप्ताह से जहाज़ में सवार होकर उंदलस पहुंचा, जहां रहने और ठहरने का भी सवाब है, मगर मुसलमान उंदलस से ऐसा मिटे जैसे कभी थे ही नहीं। अल्लामा ने मस्जिद करतबा में कहा था, वो सजदाए रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व महराब। अल्लामा इकबाल जैसा जहां दीदा, हसास और जिंदा दिल इंसान, जिसकी निगाह मुसलमान आलम की तारीख का अहाता करती थी, वो मस्जिद करतबा से कब बेखबर रह सकता था। अल्लामा इकबाल अक्टूबर 1932 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए। कॉन्फ्रेंस से फारिग होने के बाद पेरिस होते हुए जनवरी 1933 में हस्पानिया, मौजूदा स्पेन पहुंचे। हस्पानिया के वजीर तालीम प्रोफेसर हसन की दरख्वास्त पर अल्लामा ने मैड्रिड यूनिवर्सिटी में द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड ऑफ इस्लाम एंड स्पेन के मौजू पर लेक्चर दिया। इस सफ़र के दौरान अल्लामा को हस्पानिया के कई दूसरे शहरों तलीतला, करतबा, गरनाता और इशबिलिया की सियाहत का मौका मिला। करतबा के सफ़र में मस्जिद करतबा भी तशरीफ़ ले गए और अपनी हसास आंखों से जामे मस्जिद करतबा का हाल जार देख कर बेखुद हो गए और आंखें अश्कबार हो गईं। शहर करतबा ही में आपने अपनी शोरा पाक नज़म मस्जिद करतबा के नाम से एक नज़म तहरीर फरमाई, जो दर्द और जज्बात के न जाने की साथ में लिखी गई होगी। नाज़रीन, ख़त में अल्लामा लिखते हैं, मस्जिद की ज़ियारत ने मुझे जज्बात की ऐसी रिफ़त तक पहुँचा दिया जो मुझे पहले कभी नसीब ना हुई। अल्लामा की ज़ियारत मस्जिद का दिलचस्प वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि अल्लामा मस्जिद में पहुँचे
تو बेख्तियार चाहा कि मस्जिद में तहियतुल मस्जिद की नफल अदा करें। एक ईसाई निगरान ने नफल अदा करने की इजाज़त मांगी तो उसने कहा मैं बड़े पादरी से पूछा हूँ। इधर वो पूछने गया, इधर अल्लामा ने नियत बांध ली, उसके वापस आने से पहले ही नमाज से फारिग हो गए। बाज़ रिवायत के मुताबिक अल्लामा ने मस्जिद में अजान भी कही। नाज़रीन, मस्जिद करतबा के बारे में शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब अपने उंदलस के सफ़रनामे में लिखते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने तारीख़ी मकामात देखे हैं, बहुत सी इबरत कदों को देखने का मौका मिला है, लेकिन दिलों दिमाग पर जो हसरतनाक तासुर जामे मस्जिद करतबा को देखकर हुआ, वो किसी और तारीख़ी मकाम को देखकर नहीं हुआ। और अब समझ में आया कि इकबाल मरहूम ने मस्जिद करतबा में जो तवील नज़म कही है वो तासुर के किस आलम में कही है। ये था दिलसोज और इबरत खेज तस्करा मस्जिद करतबा की बर्बादी और उंदलस की तबाही का। मुसलमानों को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान में अपनों के हाथों जितना नुकसान उठाना पड़ा, इतना बैरूनी ताकतों के हाथों नहीं उठाना पड़ा। और उंदलस की तबाही में भी अपनों की गद्दारी ही कार फरमा थी। मोहतरम नाज़रीन, करतबा शहर के अलावा सकूत गरनाता भी एक अहम शान है और ये शहर एक साथ ही बर्बाद हुए, इसलिए इनकी तारीख तकरीबन एक ही है। आपको बताते चलें कि गरनाता स्पेन के जनूब में एक तारीखी शहर का नाम है। इसकी वजह शोहरत मुसलमानों का अलहमरा महल है। आपको बताते चलें कि 1492 तक गरनाता आखिरी इस्लामी रियासत का मरकज़ था। 892 हिजरी ब मुताबिक 2 जनवरी 1492 हस्पानिया में आखिरी मुस्लिम रियासत गरनाता के हुक्मरान अबू अब्दुल्ला ने ताज कश्ताला और ताज अरागोन के मसीही हुक्मरान मलका इजाबिला और शाह फर्दिनेंद के सामने हथियार डाल दिए और इस तरह हिस्पानिया में सदियों पर मुहित मुस्लिम इक़्तिदार का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। इस वाक़े को सकूत गरनाता के नाम से याद किया जाता है। तारीखी रिवायत बता दे कि 18 शराइत पर मबनी माहदे के तहत मुसलमानों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी की यकीन दहाई कराएगी, लेकिन मसीही हुक्मरान ज़्यादा अरसे अपने वादे पर कायम न रहे। मुसलमानों को जबरन मसीही बनाया गया, जिन्होंने इससे इनकार किया उन्हें जला वतन कर दिया गया। तारीख के मुताबिक इन तमाम शराइत में बज़ाहिर मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की ज़मानत नज़र आ रही थी, लेकिन नाज़रीन, हम जानते हैं कि कुरान और हदीस में यहूद और नसारा के बारे में वाज़ेह अहकामात हैं। वो कभी भी तुम्हारे खैर खार हमदर्द नहीं हो सकते, और तारीख ने इस बात को बहुत जल्द सच कर दिखाया। कुछ अरसे में ही ईसाइयों ने इस माहदे की धज्जियाँ बखेर कर रख दी और फिर मुसलमानों पर जुल्म सितम की वो इबरतनाक दास्तान शुरू हो जाती है जो आज भी स्पेन और दुनिया की तारीख में मौजूद है। सबसे पहले तब्दीली मज़हब का हुक्मनामा जारी हुआ, जिसके तहत हुक्म दिया गया कि हर मुसलमान ईसाइयत कबूल कर ले वरना कत्ल कर दिया जाएगा। इस हुक्म के ज़रिए बेशुमार मुसलमान जबरन ईसाई बना दिए गए, हज़ारों लोगों को सूली पर लटका दिया गया और हज़ारों को कैदी बनाकर जबरी मुशक्क़त के कैंपों में पहुंचा दिया गया, जहां मौत के बाद उनको रिहाई मिली। मदारिस में बच्चों को ईसाइयत की तालीम दी जाने लगी। उनके कुतुब खानों में महफूज तारीख की किताबों से पता चलता है कि सिर्फ एक दिन में 3000 से ज़ायद मुसलमानों को ईसाई बनाया जाता था। कुछ अरसे बाद न सिर्फ मुसलमानों के लिबास और ज़ुबान पर पाबंदी लगाई गई, बल्कि उन्हें अपना नाम भी तब्दील करने का हुक्म जारी हो गया। मसाजिद को घोड़ों और दीगर जानवरों के अस्तबल में तब्दील कर दिया गया और मुसलमानों की आलीशान और खूबसूरत मसाजिद को गिरजा घरों में तब्दील कर दिया गया, जिनमें सबसे बड़ा वाक़या जामिया मस्जिद करतबा का है, जो आप मुलाहजा कर चुके हैं। नाज़रीन, तारीखी रिवायत बता दें कि अबू अब्दुल्ला और उसके सारे ख़ानदान को अबशारा में इबरतनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया और इस इलाके को न सिर्फ मुसलमानों का मज़बा खाना बना दिया गया, बल्कि मुसलमानों को जानवरों की तरह ज़िबा करने का तमाशा दिखाया जाता था। नाज़रीन, तारीख बताते कि मुस्लिम हिस्पानिया यानी उंदलस के आखिरी हुक्मरान अबू अब्दुल्ला बिन मौलाए अबुल हसन जब वो गरनाता की चाबियाँ मसीह हुक्मरानों के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए गरनाता से जला वितन हो रहा था, उसने जब आखिरी निगाह अपने आबा अजदाद के वर्से पर डाली तो उसकी आंखें डुबडुबा गईं। तो उस वक्त अपने बेटे की आहुजारी पर उसकी माँ ने ये तारीख साज अल्फाज कहे, जिस चीज़ की हिफाजत तुम मर्दों की तरह नहीं कर सकते, उसके छिन जाने पर औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। नाज़रीन, कहा जाता है कि उस मकाम पर जहाँ अबू अब्दुल्ला की आह निकली, मसीहियों ने मुसलमानों की शिकस्त की अलामत के तौर पर महफूज कर लिया और आज उसे मोर की आखिरी आह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरोपी तारीख उंदलस के मुसलमानों के लिए मोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अबू अब्दुल्ला उंदलस के आखिरी मुस्लिम रियासत ममलिकत गरनाता को बदबख्त हुक्मरान था, जिसने ऐन उस वक्त अपने वालिद अबुल हसन और चचा मोहम्मद बिन सैयद दुल जागल के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया, जब वह उंदलस में
मसीहियों के मुश्तरका लश्कर से उंदलस में मुसलमानों की बका की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। आइए 1469 के उंदलस के सियासी मंजरनामे पर निगाह डालते हैं। इस दास्तान के आखिरी बाब की तरफ चलते हैं, जिसका आगाज तकरीबन 800 साल कबल जबल तारिक या जेब्राल्टर के साहिल पर तारिक बिन ज़ियाद ने मसीही गौथ शहनशाह रौडक को इबरतनाक शिकस्त देकर किया था। मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद ने जल्द ही इस्पानिया से मसीहियों की हुकूमत का खात्मा कर दिया। इस तरह इस्पानिया दमिश्क की खिलाफत के ज़ेर नगी आ गया था। दमिश्क के इनकलाब के बाद इस्लामी खिलाफत बगदाद मुंतकिल हो गई और उंदलस की हुक्मरानी उमवी शहजादे अब्दुर्रहमान अल दाखिल को मिल गई। नादिन वक्त गुजरता गया, उंदलस की हुकूमतें बदलती रहीं और मुसलमान उंदलस में मजबूत और मुस्तहकम होते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता उंदलस आलम इस्लाम का इल्म हुनर का मरकज़ बन गया। दौर अरूज में उंदलस ने इब्न बेतार, इब्न रुश्द, इब्न बाजा, अल-फाराबी, इब्न हज़म, इसहाक मूसली और अल-खज़ीब जैसे हज़ारों उलमा और फज़ला पैदा किए। फिर वक्त ने पलटा खाया और उंदलस के मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। फिर कुदरत ने यूसुफ बिन ताशफीन की सूरत में उंदलस के मुसलमानों को संभलने का बेहतरीन मौका फराहम किया, मगर उनके नसीब में जवाल लिख दिया गया था और यूं अल दाखिल की अजीम सल्तनत टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए। सरकस्ता, कश्तालिया, अशबिलिया और करतबा जैसे अजीम इल्म हुनर के मराकज़ मुसलमानों के हाथ से निकलने शुरू हो गए। अरागोन और कश्ताला की मजबूत मसीही ममलकतें वजूद में आ गईं।